کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ گن براڈ اور سادپورہ سمیت سپور کے دیگر دیہات کے لوگوں نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجیوں نے محکمے پر ان علاقوں میں بجلی کی کم سپلائی کرنے کا الزام لگایا۔ لوگوں کے مطابق بارہا شکایت کے باوجود محکمہ پاور ڈیولپمنٹ بجلی کی بروقت فراہمی کو یقینی نہیں بنا پا رہا۔ لوگوں نے محکمے سے نئے الیکٹرک پولز لگانے اور نئے وائر بدلنے کا مطالبہ کیا تاکہ بجلی سپلائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ پاور وقت پہ مطلب گرا تارن ہز پرابلم لائن تین سیود بچھت وت وری ونان دیو تھی الگ یپر روڈ لائن یہ بالکل کھے مز پرابلم پتمو اک رت پہ ترین گامن پرابلم یہ چیز کہ پاورس کٹ بجی پاورچ کٹ بجی ییژا گھان اگر 10 بجے پاور 10 بجے لاگن کہہ بجے نین پتہ پاور ربشن ہاں آب آبچ پرابلم آب کھالن تار کنڈ تار تھومت مین تار بدل کنڈ تار کس اگر پول وچک تم کینکر کل أنمت گرو مز ژٹت بیٚیہِ پھرٛس أنمت تم لگمت پولو بدل۔ شوپیاں کے NHM ملازمین نے ان کی فروری 2019 کی تنخواہ کو بغیر کسی وجہ سے روکے جانے کی مخالفت میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ وادی کے تمام اضلاع میں NHM ملازمین کی وقت پر تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں، لیکن شوپیاں میں NHM ملازمین کی فروری 2019 کی تنخواہ ادا نہیں کی گئی ہے۔ احتجاجیوں کے مطابق اس معاملے میں DDC شوپیاں CMO شوپیاں کو پہلے ہی ہدایات دے چکا ہے، لیکن CMO شوپیاں اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ میں ہم کام کر رہے ہیں پچھلے بہت سارے سالوں سے۔ 2019 میں تھرو آؤٹ JNK اسٹیٹ ایک اسٹرائک ہوئی تھی ہماری، وہ اسٹرائک پیریڈ کا جو سیلری ہے وہ پینڈنگ ہے ہماری میڈیکل بلاک زین پورہ، کیلر اور شوپیان، باقی آلموسٹ ہر جگہ پر چھوڑی گئی ہے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھید بھاؤ کیوں کیا گیا ہے۔ سنور کلی پورہ ماگام میں مختلف پہاڑیوں سے سرکاری اراضی میں سے غیر قانونی طور پر رات کے اندھیرے کے دوران ٹپر والوں کی طرف سے ہر روز مٹی نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے میوہ باغات میں زمین کھسکنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اگرچہ سنور کلی پورہ میں سرکاری اراضی میں سے یہ لوگ رات کے دوران JCB لگا کر غیر قانونی طور پر مٹی نکال رہے ہیں، لیکن تحصیلدار ماگام یا انتظامیہ دیگر عہدیداران خاموش تماشائی ہے۔ گورنمنٹ لینڈ ہے تو یہ برک کلن والے یہاں کنٹینیوسلی رات گئی اسے ایکسٹریکٹ لینڈ کر رہے ہیں، ایکسٹریکٹ سوائل کر رہے ہیں نا، اس سے ہماری باغوں کو آپ نے خود دیکھا کہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ ہر دن دانت میں درد ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ سالڈ ایکشن چاہتے ہیں۔ گاس چرائی زمین سیک تلن یہ نائٹس مز تلن 10 بجے پتہ کہ یہ کس تلان، مگر کہین تہ کاروٲیی چھنہٕ گژھان، یمو سٲلمس زمینس ومینس یور تبٲہی کٔرمٕژ۔ 10 بجے پتھ کن 10 بجے پتھ کن JCB ہیتھ تو ڈپر وپر تم یہ سیک ویک ات کڑت، ات نالہ بنٲیمٕتۍ تو ات گوٚژھ مہربٲنی کٔرِتھ۔ سانبہ ضلع کے غریب لوگ انتظامیہ پر لاک ڈاؤن کے دوران ان کے نام BPL کی فہرست سے ہٹانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ شکایت کنندگان کے مطابق لاک ڈاؤن میں BPL کارڈ کی وجہ سے انہیں مفت راشن مل رہا تھا، لیکن انتظامیہ نے بنا سروے اور بغیر کسی جانچ کے ان کے نام BPL فہرست سے ہٹا دیے ہیں۔ وہیں وجے پور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین نے جلد از جلد خارج کیے گئے ناموں کو دوبارہ فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ راشن کارڈ تھا، ابھی میرا انہوں نے NPHH کا کر دیا۔ میں ان کو ریزن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ریزن تھا کہ کس بیس پہ انہوں نے میرا راشن کارڈ جو ہے BPL سے راشن کارڈ نام کاٹ کے اور NPPH کر دیا۔ تو اوپر سے لاک ڈاؤن کی پرابلم ہے، کوئی کام چل نہیں رہا ہے، اوپر سے راشن مطلب کہ گھر پہ کوئی کمانے والا جو بھی ہے سبھی لاگ ہو کے رہ کے ہے سبھی۔ BPL تھا، ابھی انہوں نے NPH کر دیا۔ ان کے پاس میں 2-3 بار بھی گیا ہوں، میں بیمار بندہ، میرے کو شوگر کی پرابلم ہے، میرا اتنا کوئی بڑا کاروبار تو ہے نہیں ہے، گھر کا اکیلا میں یہی کمانے والا ہوں۔ جب پردھان منتری مودی جی نے کورونا وائرس پہ لوگوں کو فری راشن کی ویوستھا کر دی ہے، اس میں بھی لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے اور میکسیمم لوگوں کو چکر لگائے جا رہے ہیں۔ جب وہ راشن لینے جاتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ جاؤ پہلے TSO آفس جاؤ، وہاں پہ جا کر کے آپ لنک کرواؤ۔ تو جو غریب طبقہ ہے جن کے راشن کارڈ کئی سالوں سے بنے ہوئے تھے BPLs کے، آج جب ان کو راشن دینے کی باری آئی تو ان کا راشن کارڈ کاٹ دیے۔ خاص کر کے یہ فری راشن پہ ہی یہ اس پہ کچھ گھوٹالے بازی کرنے کے چکر میں ہے، انتھا بالکل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ انکوائری ہوگی تبھی ان افسروں کو پتہ چلے گا۔ یہ غریب لوگوں کا راشن کھا رہے ہیں، بیچارے غریب لوگ جن کو اس وقت COVID-19 چل رہا ہے،
राशन घर में खाने पीने का कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिल रही है ऊपर से ये जो अफसर बैठे हैं वो खाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के द्राबशला के 850 मेगावाट कारतलाई पावर प्रोजेक्ट गुज़श्ता 7 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इलाके में बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। बेरोजगार नौजवान पावर प्लांट को दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद सरूरी के मुताबिक बीजेपी के चंद लीडरों ने पावर प्लांट को बंद करवाया। इनके मुताबिक अभी तक पावर प्लांट के मुलाजमीन को हर्जाना भी अदा नहीं किया गया। 6-7 साल हो गए वो प्रोजेक्ट अभी रिटले का बांधे जो द्राबशाला में बनने जा रहा था, तो इसके बाद आज तक गवर्नमेंट ने उसके बारे में न कुछ सोचा। वहाँ के लोगों की पेमेंटें बकाया हैं। आरआर प्लान में जो काम किया था, रोडें बनाई थी और भी कुछ काम किए थे, उनका पैसा भी लोगों का बकाया है। जिन लोगों को कंपनी वालों ने कंपनसेशन देना था वो भी नहीं दिया और कंपनी वाले जीवीके वहाँ से भाग गए। एलएनटी उनका सब कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी यहाँ से भाग गए, लोगों का पैसा बकाया रहा। अभी तक सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। बहुत आसान प्रोजेक्ट था, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में फौरी तौर पे उसको चालू किया जाए कि एक ही पार्टी के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जा रहे हैं, एक ही पार्टी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक ही पार्टी के लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। बड़ा अफसोस की बात है। लेह में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी काउंसलर्स ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और आज उन तमाम काउंसलर्स ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक रंगारंग तकरीब में लेह के बीजेपी सदर और लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट की मौजूदगी में एनसी के काउंसलर्स बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर एमपी लद्दाख जेटी नामग्याल ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा लद्दाख बीजेपी में शामिल हो जाएगा। लेह डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसॉल्व करके वाइंड अप करके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लीडर्स, एक्टिविस्ट, वर्कर्स, वॉलंटियर्स, सपोर्टर्स माननीय काउंसलर शिनू वांगडन जी के क़यादत में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा नुब्रा में पूरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइंड अप करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसी तरह ज़ंस्कार में जितने भी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स है, एक्टिविस्ट है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी के दमन थमे। बटालिक इलाके के आर्यन बेल्ट में गुरकुन गांव में लद्दाख यूटी के पहले यौम तासीस का जश्न मनाया गया। एक तकरीब में मुनक्किद की गई जिसमें मोहम्मद अली मजाज मेहमान खुसूसी जबकि मोहम्मद हसन पाशा मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शरीक हुए। एक कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें रिवायती लिबास पहने गए थे। नौदल त्राल में मौजूद मशहूर नौनाग में मकामी कश्मीरी पंडितों ने पूजा की। अमरनाथ यात्रा के बाद नौनाग में हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित पूजा के लिए शिरकत करते हैं। ताहम लॉकडाउन की वजह से आज यहाँ मकामी पंडितों ने स्थापन पर हाजिरी दी और पूजा की। ये स्थापन हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सदियों से गहवारा रहा है। ताहम लॉकडाउन के बावजूद भी मकामी मुसलमान यहाँ पर मौजूद रहे। यात्रा से वापस आते हैं वो इस चश्मे में अपनी छड़ी बहाकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो। आज यहाँ पे उसी परंपरा को मनाते हुए 2-3 ग्रुपों में यहाँ पे पूजा अर्चना हो गई है। मैं यहाँ के अवाम और डिस्ट्रिक्ट तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस में जो भी ज़रूरत थी वो पूरा की है। अब जो ये भाईचारा है यहाँ का ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। जो इस समय भी आपको दिखता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे होते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो और लोकल्स का जो सपोर्ट हमें हर साल मिलता रहा है और आज भी मिला है, जो काफ़ी सराहनीय है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। बाकी हम ये सोचते हैं कि इस टाइम जो आजकल ये महामारी है, ये सारी महामारी जो है यही भगवान शंकर से कृपा है कि कश्मीर के मारूफ अदीब, नक्काद, अफसाना निगार, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर अंजानी अवतार कृष्ण रहबर को खराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से एक ऑनलाइन तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की जानब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अंजानी की खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। ये तकरीब लगभग 3 घंटों तक जारी रही। इसमें वादी के नामवर अदीबों, दानिश्वरों, शोरा और कलमकारों ने शिरकत की। मोहम्मद जमा अज़ुर्दा, डॉक्टर सोहन लाल कौल, बशर बशीर, प्रोफेसर शाद रमज़ान, इनायत गुल, शांतिवीर कौल, आर के भट्ट, अब्दुल अहद हाजनी और
सतीश विमल समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आनजानी की शख्सियत के हर पहलू पर बात की गई। मशहूर अफसाना निगार, ड्रामा निगार और एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर जनाब अवतार कृष्ण रहबर साहब की बेवक्त मौत से कश्मीरी इल्म अदब में एक ऐसा खला पैदा हो गया जिसका पुर होना नामुमकिन है। अवतार कृष्ण रहबर साहब की मौत ने हमसे बैक वक्त 4 शख्सियतें छीन। एक कदावर कहानीकार, एक बेहतरीन ड्रामा निगार, एक ब्रॉडकास्टर और कश्मीरी शेर व अदब के ताल्लुक से एक बड़ा तारीखदार। कश्मीर मरकज़ सक़ाफ़त व अदब ने आज एक ऑनलाइन प्रोग्राम तश्कील देकर इस कदावर शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश किया। ये नशस्त करीब 3 घंटे जारी रही और उनके शख्सियत के हर गोशे पर बेहतर तरीके से रोशनी डाली गई। शोपियां के छोटेपुरा गांव में आपाशी की सहूलत की अदम दस्तयाबी के चलते बागात बर्बाद हो रहे हैं। गुज़श्ता कई साल से यहाँ आपाशी की सहूलत नहीं है और इस ज़मीन में कई मरतबा ज़िला इंतज़ामिया को बाखबर कराया गया। किसानों और मेवा काश्तकारों ने LG और ज़िला इंतज़ामिया से गाँव में जल्द अज जल्द आपाशी की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया है ताकि बागात और खेतों को पानी मुहैया कराया जा सके। सन बाग तिमन गई चिनी मोट बाग गई सारी हाक सुतान दोद अच्छा दवा स्प्रे गई कर ज़रियत गई स्प्रे कर गरीब तक ये मसल आब कह फेसिलिटी अगर यह शाह कॉलेज चलान शाह कॉल वनकस पे शाह कॉल आब बस शाह कॉलेज गई कोविड की वजह से जो 2020 से कंटिन्यू मतलब जनवरी से लेकर आज तक कोविड की वजह से लॉकडाउन है। हमारा इलाका जो बैकवर्ड इलाका है, हर कोई मजदूर है यहाँ पर दिन में मजदूरी को जाता था, वो शाम को अपने अयाल के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ कमा के लाता था। उसकी वजह से भी हम परेशान हैं। हमें इस बागात पे था तो फिर वो पानी की न होने की वजह से वो भी तबाह हो गए। हम अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हुकाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस परेशानी को जल्द अज जल्द कोई हल ढूंढे। वैन पामपुर की ग्रीन लैंड कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों के मुताबिक चंद साल कबल महकमे PHE ने लोगों की सहूलियात के लिए एक बोरवेल खोदा था, लेकिन अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। पुराना वाटर रिजर्वायर खस्ता हाली का शिकार है। लोगों के मुताबिक वाटर रिजर्वायर से कीड़े निकल रहे हैं। खवातीन के मुताबिक उन्हें इस शदीद गर्मी में कई किलोमीटर दूर से पानी हासिल करना पड़ रहा है। इस ज़मीन में महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद ने बताया कि इलाके के लिए मंसूबा बनाया गया है और जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। माजन बेन पौधन पे तट आब खान मुश्किलात चूंकि 5-6 वरी ब्रोट स्कीम आई बनाने सो कम्प्लीट तथ पाइपन हूँ जरूरत खाली तो 5-6 वरियन मन प्रे सात वन हुकाम तम आज करो पगह करो कलकत करो तो आज तम मसल हल यपरी टैंकी पे टैंकी जोरी पे लीक अ मुश्किल घंटे ओड घंटे आब आज आव अड़िस घंटस पाव आब तथ प्रेशर तहन वन इल्तजा करान गवर्नमेंटस अपील करान पन्ने तरफ के करो यह मसला हल मसल साफ पानी आब रोजन अगर 4 घंटन ते आब सह कम गर्म ज्यादा सन अपील दीतन साफ पानी। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आपने अभी तक Amazon.in पर लॉगिन नहीं किया है तो जल्दी लॉगिन कीजिए ताकि देर ना हो जाए और आप सस्ते में ब्रांडेड सामान खरीदने से चूक ना जाएं, क्योंकि Amazon पर सेल शुरू हो चुकी है जिसमें 300 से अधिक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर